Way I go, so many things in my pocket. ये 3-4 दिन का workshop है, but could be condensed into 2 days, and then because of the breaks and everything, so and discussions, so it actually turns down to be a 1 day only total contact. But then again, the main objective is कि हम लोग बड़ा. So that's a very good question that you asked. कि कहानी को what makes people go through this. So I want to share this very interesting phenomena, either in the corporate world or in the pyramid of life. Take a look at this chart from 2 different angles. 2 different angles से इसको देखिए, ठीक है जी? Right? क्या angles हैं? Corporate, as well as this, right? So a very interesting phenomena happens in the beginning, like when you start coming up in your life, so slowly you come up, and then you come up very fast. Why? Because IT हो गई या आपकी जो growth होती है, exponential उसको होती है, उसको नहीं लग रहा होता, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपने सालों के बाद, कि आपको नजर आता है कि यार मेरे जो शुरू के जो 10 साल थे वो बड़े ऐसे गए हैं वैसे ऊपर यार, उसको तभी लग रहा था कि चेंज आ रही है, लेकिन वो ऐसे गए. लेकिन उसके बाद फिर हम जाके एक बैरियर पे जाके फंस गए, एंड वी गॉट स्टक एट अ बैरियर, एंड दिस बैरियर आई कॉल इट द सक्सेस बैरियर. व्हाट इज द सक्सेस बैरियर? बैरियर इज लाइक अ सीलिंग, राइट? सीलिंग होती है ना, तरह से आपके एक बैरियर आ गया, उसके ऊपर आप आगे नहीं जा सकते, छत आ गया, छत से ऊपर आप नहीं. सो वो ये बैरियर, तो नॉर्मली लोग अपने जो इस बैरियर तक पहुंचते हैं अपनी जिंदगी में, वो बिटवीन द एजेस ऑफ 30 to 50 पहुंचते हैं. सो लेट्स से 30 to 50. So this means what? I could be 35 or 40 years old when I reach my barrier, and the chances are that I stay here for the remainder of my वर्किंग लाइफ. मैं 40 साल का था, मैं यहाँ पहुंचा, और जब मैं 60 साल पे जाके रिटायर करूंगा तो वो भी रेंज मेरी यही रहेगी. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिटायर एट दिस स्टेज. Majority of the people in this room will also retire at this stage, unfortunately. So very few of you will be able to break that barrier. What are those barriers? ये चूंकि अभी ये बिलाल ने बात की तो मैं कहा चलो let me add this also. What are those barriers that people face? So everybody will face their own barrier. For you it will be different from you, and for you it will be something different for anybody else. For some it will be on a personal level, for some it will be professional level, and for some professional के अंदर भी different categories आ जाएंगी. कि how to deal with senior management, example, is a barrier. How to have good communication skills is a barrier. How to take risks is a barrier. How to bring out your innovation and creativity is a barrier. Comfort zone से कैसे निकलना है is a barrier. Emotional intelligence कैसे अपनी handle करनी है is a barrier. How to influence other people, interdepartmental coordination, team spirit. और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे माहौल के अंदर, now I'll link it to the culture in which we live. Majority of the people when they reach up here, तो उसको कहते हैं यार ये चलो यार ये पोजीशन आ गई है, पैसे मिल रहे हैं और मजबूरी भी है हमारे पास. मजबूरियाँ सबकी होती हैं किसी के, जिसलिए वो अपने काम कर रहे होते हैं. तो मैं नौकरी छोड़ भी नहीं सकता हूँ और मैं कहीं और जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसके मुझे ऑपरेट करना है. सो उस वक्त क्या होता है कि ये बैरियर आपकी इनसिक्योरिटी लेवल हाई होती है. जैसे जैसे आपकी सैलरी हाई जाएगी, जैसे जैसे आपकी सैलरी हाई जाएगी, बिकॉज आप इतने माउथ्स को फीड कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, 5-10 तो होंगे ना आपके जो लोग जिनको आप पाल रहे होंगे, क्यों ऐसा, ठीक है ना, माँ बाप उसमें आ गए, बीवी बच्चे आ गए, एक आध बहन भाई भी आ जाए उसके अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, ठीक है ना. और वैसे भी वो जो मोहल्ले का मौलवी है उसको भी देना होता कुछ. तो सारी हमारी मजबूरियां, हमारी सारी चीजें, हमारी जो एक सोशल सर्कल का जो है वो that ends up keeping the pressure of the financial needs so strong that even the thought of me leaving a job and a stable income, monthly income, paycheck को छोड़ने की एक बहुत बड़ी insecurity होती है. So this insecurity is a very strong driving force in people. So this is one of the barriers that people face. So I will write insecurity here because this is one of the strongest needs that people have to secure themselves on this position. In the process, especially in our country, in our culture, and in most developing countries, what is the actual point? कि कहानी के मैं सिक्योरिटी जरा करो यार. तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब ये मेरी सैलरी हाई चली गई है, इसको छोड़ते हुए नहीं, तो यार अपने जरा यार किताबी बातें और हैं कि अपनी रिप्लेसमेंट को ग्रूम करो या अपना नंबर 2 क्रिएट करो. यार उस बंदे ने मेरी अगर जगह ले ली
तो मेरे खानदान फैमिली का क्या होगा? वो छड्डो परे यार किताबी गल्लां, मैंने तो प्रैक्टिकली बचान दो अपनी जॉब। ये साइकी हमारी बिकॉज सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, सो इनसिक्योरिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन, आई मे अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स to groom my replacement, to develop my team, but deep inside, if I have an insecurity, why will I train somebody who will take my place? Does that answer your question? Yeah. All right? Yes. अच्छा, बात से बात निकलती है. This is not the only thing. Insecurity is one thing. Another is comfort zone. कि I am in a comfortable position now. 10 साल पहले मैंने सीखा यार कि मेरे यार गड्डी होए चंगी जी, मेरे को टीवी होए है जी, तो मेरे पास एक्सपेंस अकाउंट हो और मैं डीलिंग कर रहा हूँ बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। और की चीज़ है यार, यही है ना जिंदगी। ये कंफर्ट जोन है। Actually, life begins beyond your comfort zone. Life begins beyond your comfort zone. Very good. Chocolate with these अच्छा, so comfort zone is also a very very strong motivation. Comfort zone से कितने लोग हैं जो समझते हैं वो comfort zone के अंदर? Raise your hand please. Yeah. Oh very good. No, 9 majority है. Comfort zone से निकलने का एक तरीका भाई. Focus on your internal motivation and your dreams. एक ही तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल पॉइंट्स हैं। इट मस्ट बी कॉमन सेंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये सीड अपने अंदर प्लांट कर लें कि अगर मोटिवेशन आपको चाहिए तो स्टॉप लुकिंग ऑन द आउटसाइड एंड लुक ऑन द इनसाइड, व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू। सो कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है? और बैरियर पे आ जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस। It is not your logic, it is not your academic knowledge which will actually determine, your IQ will not determine where you will land on this chart in your life. But it depends how emotionally strong you are. Now when I say, do you think human beings are logical or you think they are emotional? If you were to choose one answer, what will you choose? Emotional. 100% emotional. You take out emotions from an individual, that individual is not a human anymore. He's a robot. He's a robot. Mr. Spock. Angel. Mr. Spock. कैसे करता था मैं वो? Angel. All right. So that is also there. So, but this is another topic. Developing your emotional intelligence, like actual tools, not just theoretical part. So there is a workshop that I've come up with recently, getting practical tips on how to be emotionally more intelligent. Example, how to take criticism, how to respond to criticism, how to empathize with other people, how to know yourself. Self-awareness is also, lack of self-awareness is also a huge barrier for a lot of people. Unlearning, I must unlearn bad habits that I have accumulated from here till here. आज वो रिकॉर्ड नहीं है. How do I let those go? How do I let those go? उसके बाद और आ जाए इसके अंदर कि देखिए what are the areas that you sort of like need to go, lack of motivation. Some people are not motivated themselves. ठीक है एक ख्वाहिश है कि उस यहाँ से ऊपर जाने की, बट असल मोटिवेशन नहीं है। वो शेख चिल्ली टाइप सीन है वो, कि वो एक ख्वाहिश है, वो डिजायर तो है लेकिन एक्शन कोई नहीं है उसके पीछे वहां से जाने के लिए। जाना चाहते हैं ऊपर लेकिन उसकी प्राइस नहीं पे करना चाहते। प्राइस क्या है? मे बी कोई रिस्क लेना है, शायद अपने आप को चेंज करना है, शायद कुछ अनलर्न करना है, शायद कुछ लोगों के साथ टीम डेवलप करनी है, शायद कोई नई स्किल लेके आनी है, शायद कोई पुरानी स्किल तो यहाँ रिक्वायर्ड थी अब यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, उसको ड्रॉप करना है अपनी जिंदगी से। शायद कोई नया रिलेशन करना, शायद कोई नया रिलेशन करना हो, या शायद पुराना रिलेशनशिप को तोड़ना हो। सही बात है। सो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी, सो स्काई इज द लिमिट। कोई एक आंसर नहीं है। यू हैव टू डिसाइड इन योर ओन लाइफ व्हाट आर द बैरियर्स स्टैंडिंग इन योर वे। So there is an exercise
अभी नहीं मैं कह रहा हूँ करने के लिए, बट आई जस्ट वांट योर अटेंशन के लिए कि पेज नंबर 34 के ऊपर बैरियर अवेयरनेस एक्सरसाइज, बैरियर अवेयरनेस एक्सरसाइज will help you to, this is an exercise I developed about 7-8 years ago and it's become very powerful exercise for people जो identify करना चाहते हैं कि ठीक है मेरे barriers हैं क्या जिंदगी में, to overcome those barriers. So like you know, so अपने फारग वक्त में अपने बैठ के ये वाली exercise करनी है and this will make a lot of sense to you. बड़ी प्यारी exercise. New content develop करते रहना चाहिए अपना. Alright. So this is a very powerful exercise. So what I'm saying is कि these sort of things, these sort of barriers create a person to sort of like break और हम. So अगर ये मेरे अंदर motivation होगी, अगर मेरे अंदर internal motivation होगी, मेरे dreams are higher than my own self, only then I will be able to break this barrier. Otherwise I will get stuck in this and I will retire at this level. And then at the end of my life, I will blame circumstances or some other people. कि यार मैं तो बड़ी तरक्की करना चाहता था लेकिन यार हालात ने और दूसरे लोगों ने मेरे मैनेजर ने मेरा साथ नहीं दिया. सो पंजाबी में कहते हैं सोचा बड़ा सी पर लोगों ने करन नहीं दिया. सोचा बड़ा सी लेकिन लोगों ने करन नहीं दिया. यही मंजूर था in the end It was the will of God. It was the will of God. ऑडियंस की और इससे एक और बात ऑडियंस की तो बात कर रहे होते हैं. जब क्या हमारी भी बनाओ यार. जब जिंदगी में कोई अच्छा हो जाए तब अल्लाह का शुक्र नहीं करना जब कोई पूरा हो जाए. कहने यार अल्लाह ने अल्लाह शायद यही मंजूर था. और जब खुद कोई चीज अचीव करनी है मैंने की. हाँ ये बिल्कुल नया चॉकलेट मिलती है. हाँ जो अल्लाह ने मंजूर जी ओ अल्लाह ने मंजूर है तो ਤੁਸੀਂ अल्लाह हरकत ने अकल भी तो दी है. अल्लाह ने हरकत ਦਿੱਤੀ और अल्लाह मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ सकत देती है कि ਤੁਸੀਂ हरकत करो. हरकत से बरकत. अरबिक में कहते हैं उसको हरका बरका. एक्चुअली जो हमारे यहाँ किस्मत का कॉन्सेप्ट है ना ये भी बड़ा मिसपरसीव्ड एंड मिसकंसीव्ड है. किस्मत भैड़ी जी. किस्मत में All right. So coming back to this point, internal motivation. So the challenge is in today's day and age, अब external factors के ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूँ, जरा zoom in करते हैं उसके ऊपर कि क्या negative influences हमें आ रहे हैं. सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, टीवी से कितने आ रहे हैं, अखबारों से कितने आ रहे हैं. इसको तो कट ऑफ करना बड़ा जरूरी है, नेगेटिव इनपुट को. कल आप वाली बात में टॉक शो देखने लगा हूँ. लिटरली देखने लगा हूँ मैंने एकदम नेशनल ज्योग्राफिक लगा. अरे एकदम बात वेरी गुड यार. उमर क्या बात है यार. वेरी गुड. I planted 2-3 seeds yesterday. अच्छा. In other people also. Oh very good yeah. Sir, Very good. So when you share something which you learn, you're creating a vacuum for yourself to learn more. exactly. So ये जो बिलाल बात कर रहे थे कि लोग घोट के रख लेते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को, तो वो लोग जो है ना वो घोट के रहते हैं इसलिए कि उनकी इनसिक्योरिटी है. उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो अपने आप को वो उस पोजीशन के ऊपर इनसिक्योर फील करते हैं. That is the majority of this world today. But there will be people amongst you, amongst this population, who will take that risk. They will leave their comfort zone. They will take a dip. Whenever you want a change, you will have to go through a dip. It is that dip that people are afraid of. I'm not talking about a job change, right? I'm talking about any change. The dip requires hard work. You can be very happy on your job and performing well and your employers are happy and you're also happy and timing भी ठीक है, सब कुछ ठीक है. लेकिन there could be a deep kind of frustration for you that you want to do something else. Then create more hobbies for yourself in your personal life. Travel more. Maybe you're burnt out. Burnt out सबसे important factor होता है. एक burnt out इंसान को नहीं पता चलता कि वो burnt out है. वो इतना stressed out होता है कि उसी के अंदर वो बैठ के over a period of time वो दिमाग में कहते हैं ना भूसा भर गया यार, जंग लग गया. तो जंग से निकालना अपने आप को, जंग नहीं लगने देना. गेम्स खेलते रहें, स्पोर्ट्स खेलते रहें, कुछ ना कुछ स्विमिंग करते रहें, योगा करें. योगा changed my life 9 years ago when I turned 51. So अब 60 का हूँ तो like but then again अभी कल मैं गया वहाँ पे वो next एक pharmaceutical store अभी खुला है तो मैं बताया था हमारे के साथ गया था मैं. वहाँ पे उनको वो फ्री मेडिकल चेकअप भी कर रहे थे. तो वो मैं कैसे कहते हैं, मैं जो ठीक है उन्होंने मेरा बोन डेंसिटी चेक की तो कहते हैं आपकी एज, मैं 60. उसने मशीन में फीड की, उसने देखा, उसको प्रिंट आउट निकाल के लाया. वो बिल्कुल प्रिंट आउट है मेरे पास, कोड की जाएगी. और वो मेरी बोन डेंसिटी टर्न आउट टू बी बेटर देन माय एज. मैं क्यों कहते हैं, रिजवान ने बोला यार योगा करता है इसलिए.
हाँ, और चाय कॉफी कम पीते हो? मैं कहा कम पीता हूँ। कहते हाँ, जो लोग चाय पीते हैं उनकी बोन ज्यादा कमजोर होती है। देखो जरा। मैं तो बिल्कुल इग्नोर जाएगा। All right. So reduce your tea. All right. What I'm saying is that you must become aware as to what you eat. It has a direct impact on your quality of your decision making. Sir, The quality of your life. sorry sir, I was interrupting बड़ी जोर से। Yeah. सर, कल आपने कॉन्सेप्ट दिया टीम का। तो yesterday night I had a dinner with my senior officers वो हम DSOM बैठे थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर I went on this workshop तो यहाँ पे बात हुई। तो मैंने कहा सर जो नेगेटिव चीज आती है ना, हमें कॉन्सेप्ट सर ने बताया कि यू शुड मतलब ट्रिगर इंटरसेप्ट मोड अपना है, आपने उसको हर नेगेटिव को करें। फिर वो आपकी एग्जांपल मेंशन करें। उन्होंने कहा यार देखो बात सुनो, इस तरह तो फिर सब दुनिया आंखें बंद कर लेगी, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा होगा, आपको कोई बुरी बात पता चलेगी तो आप कहेंगे नहीं 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 मैंने कुछ नहीं, मेरे से इसका क्या लेना देना है। तो वो तो नहीं, इसका तो आपकी अवेयरनेस कमजोर हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर द माशा। मैंने कहा सर आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो ही वाज सरप्राइज्ड, यार नहीं नहीं हम अप्रिशिएट और नहीं। मैंने कहा सर अप्रिशिएट करते हैं तो फिर नेगेटिविटी आप अपने अंदर लेते हैं। तो सर ही एग्रीड ऑन इट। उसने कहा यार नहीं, बंदा कन्विंस कर गया तो कल। वो कहता है वो बंदा कह रहा है कल कन्विंस कर ले। कन्विंस होना नहीं, तेरे को नहीं कन्विंस करता। वो लास्ट में सर वो मैं बॉस को लास्ट में तो सर कहता है तेरे को नहीं कन्विंस करता। मैं कहा सर है नहीं पता नहीं कन्विंस कर। अपने आप को सबने कन्विंस किया। लॉजिकल आदमी है ना, लॉजिकल आदमी है। एक्चुअली सर जो मतलब स्टैग्नेंट रहते हैं मतलब ये जैसे किस्मत का मैंने कहा कॉन्सेप्ट, इसी तरह तकदीर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें उन्होंने इसको जोड़ा है। कहते हैं एक आन में 100 बार बदल जाती है तकदीर, इसके मुकल्लद कभी पुरसंद कभी नाखुश, तकदीर के पाबंद है नबातात व जमादात, मोमन फ़क़्त अहकाम इलाही का है। ये जो नबातात और जमादात है ना, ये कहता है तकदीर के पाबंद। दे कैन नॉट मूव, ह्यूमन बीइंग्स दे कैन मूव, दे कैन गो अहेड। पर आपने बड़ी अच्छी बात की, नया कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए, लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या मतलब है लोकस ऑफ कंट्रोल? लोकस ऑफ कंट्रोल ये एक टर्म है, इसको विकिपीडिया भी दीजिएगा, देखिएगा उसको जाके आप मतलब क्या है इसका लोकस ऑफ कंट्रोल का। बट इन सलीस उर्दू और सलीस इंग्लिश, तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज द एरिया दैट यू कैन इन्फ्लुएंस। So if I am, मेरी लाइफ चल रही है, मैं अपने काम पे भी जा रहा हूँ, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो मेरा एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। वो एरियाज जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ वो होंगे मेरे लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर। मसलन मैं अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, मसलन मैं अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, मसलन मैं अपना हल्का अहबाब जो मेरे दोस्त हैं उनकी जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जो मेरे काम की जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मेरी स्ट्रेटजी है अपने काम को बेहतर करने की, उसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन मैं कश्मीर की सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इजराइल की सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं डोनाल्ड ट्रंप को सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्यों अपनी एनर्जीज उन चीजों के ऊपर फोकस करके जाया कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज? गलत बात है। एक जमाने में थी बात सही, नॉलेज इज पावर। नॉट ऑल नॉलेज इज पावर, लॉट ऑफ नॉलेज इज जंक। समटाइम्स लेस नॉलेज इज ब्लेसिंग सर। और क्या, बिल्कुल है। हाँ, ignorance is bliss। वो यार क्या बात है यार, गरीब बात करिए तुमने। एक्चुअली मैं इग्नोरेंस का वर्ड यूज करता ना तो वो बहुत ज्यादा वेग हो जाता, तो जस्ट सो फोकस ऑन योर ओन एरिया ऑफ कंट्रोल। जो चीज आपके लोकस ऑफ कंट्रोल से बाहर है उसके ऊपर मत अपनी एनर्जी जाया करें। क्या फायदा टीवी देखने का, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का फायदा है, उसमें आप सीखते हैं, बड़ी बड़ी प्यारी डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं। एक साइट है कॉल्ड curiositystream.com, सारे सुन लें, curiositystream.com। प्लीज डोनेशन देते हैं आपसे, लेकिन अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज उस पे आती हैं। इट इज द नेटफ्लिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, curiositystream.com। ये देखें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, असल चीजें अपने बारे में सीखें। आप कहाँ से आए हैं, आपका डीएनए क्या है, आपकी बायोलॉजी क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या है ह्यूमन काइंड की फॉर द फ्यूचर। एआई इज कमिंग इन,
The biggest challenge is going to be that. 20 years later, यहाँ पे ड्राइवर्स नहीं चाहिए होंगे, डॉक्टर्स नहीं चाहिए होंगे, फिर क्या होगा उस वक्त? फिर क्या उस वक्त ग्लोबल मूवमेंट्स होंगी? फिर पॉपुलेशन ग्रोथ तो चल रही है, वो तो नहीं रुक रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड शॉर्टेज, more insecurity, more turbulence, more fighting, and especially us humans, like and now with the biggest changes, climate change की तो बात हमारे पीएम ने भी की है, but climate change is also a big threat for the whole world. Nuclear weapons, nuclear war is one of the biggest threats that we have right now. कुछ नहीं पता, किसी बंदर के हाथ में माचिस आ जाए, उसने पूरे घर को जला देना पकड़ सही है जी। हमें क्या पता, कोई चीज ट्रिगर हो जाए। ईगो वॉर्स होती है लोगों की, ईगोस आपको पता है कितनी है पॉलिटिक्स के अंदर, क्यों मैनिपुलेट हो रहे हैं सिस्टम के साथ, क्यों उसको बात खुद ही से अपनी लगाम किसी और को दे रहे हैं ताकि हाँ मियाँ हमें कंट्रोल करो तुम। ये क्या है मोटिवेशन हुई यार, ये कहाँ की फ्रीडम हुई यार, कि फेसबुक आपके लिए डिसाइड कर रहा है, क्या गूगल आपके लिए डिसाइड कर रहा है कि कौन से साइट्स, कौन सी एरियाज आपको ज्यादा देने हैं, इसलिए कि आपके पैटर्न्स के मुताबिक आपके इमोशंस जो है ना, आपके इमोशंस के थ्रू आप ये सोशल मीडिया इज कैचिंग योर इमोशंस एंड दिस इज ऑल एन इमोशनल प्लेटफॉर्म which is actually happening. So people are being manipulated through their emotions, not through their logic. You think you are taking a logical decision, but it is actually not a logical decision. It is an emotional decision. Those of you who want to learn more about this, probe into this, do your research, find out. You're a free man. It is your moral right. It is your moral right to learn more the way you want to learn, not by how other people want to make you learn. You are being tracked. Every single thing you do is being tracked. Big data, metadata. Everything is now being sold. Multiple hands. Multiple hands. So this means what? You are data. You are providing the AI of the future, the patterns, the way humans live. And this data is being bought and sold for. This is information. Alright? So patterns को करने के लिए. So locus of control के ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है. अबे मियाँ, जो मेरा अपना कुआं है, जो मेरा अपना locus of control है, एरिया जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, उसको तो ठीक करें. अपना घर तो पहले ठीक करें, अपनी डोमेन तो ठीक करें, अपनी किंगडम को तो ठीक करें. बाकी बात नहीं होगी यार कि नवाज शरीफ क्या कहता है, तो इमरान खान क्या कहता है, तो वो जरदारी क्या कहता है, या डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है. क्या ताल्लुक है आपका उसकी जिंदगी से? लॉजिक बनेगी, लोग लॉजिकली नहीं, हमारे मैक्रो हालात में पता होना चाहिए, एज ए डेमोक्रेसी हमारी, हमें राइट होना चाहिए. कौन सी डेमोक्रेसी मियाँ, क्या बातें कर रहे हो? कहाँ पे, वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ यार? All the democracies are manipulated. What you call a democracy, you are not running the country, man. You know this for a fact. You are being manipulated by the system. So if the majority is manipulated by the system and they are focusing on areas that they cannot be able to influence to keep them away from the real issues, what is the real issue for you? The real issue for you is your own dreams, your own desires, what you want to do in this life. That is of relevance to you. बाकी क्या फर्क पड़ता है यार कि फलाने को वोट मिला कि नहीं मिला, फलाना सेनेटर मिला नहीं मिला, या फलानी वो, क्या फर्क पड़ता है उससे यार? So focus on the real issues. If I cannot focus on my own real issues, how can I help other people to focus on those real issues? Because मेरी अपनी, as a right, if I am coaching my juniors, then it is it's an obligation for me to develop myself more, because I have a sense of responsibility, not only my own, but the people who report me. So expanding your horizon. So मेरे views थोड़े से ज़रा radical हैं इस मामले में. So but then again, yeah, this is freedom. When you have a choice, you have no idea why you are buying a particular brand of soap, why you're buying a particular brand of shirt, or glasses, or cereal, या कोई भी अपने फेवरेट फूड सोचें. चॉकलेट ठीक है, फेवरेट चॉकलेट है, फेवरेट चॉकलेट होगी ना, किट कैट होगी या फलाना होगी. क्यों किट कैट बनी हुई है? बचपन से लेकर बैठी हुई हो. ये मैनिपुलेशन होती है हमारी, और कैसे होती है पता नहीं चलता इस बारे में.
कि कैसे आपको सीट प्लांट हो रहे हैं, बार बार रीइंफोर्स सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सबलिमिनल परसेप्शन कहते हैं एक चीज को। आपने वो देखा था ना अभी वो परसेप्शन की हमने बात की थी ना कि परसेप्शन कैसे फॉर्म होती है, राइट? पर इवेंट्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऑन द साइड लीड्स टू आवर परसेप्शन, द वे वी सी थिंग्स, जो हमारी परसेप्शन होती है, जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं, एक फिल्टर होता है हमारी आंखों के सामने जिसके थ्रू हमें पूरी दुनिया या सर्कमस्टेंसेस हमारी इवैल्यूएशन होती है। उसके बाद वो दैट लिंक्स टू आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस लिंक टू आवर attitude first and then the behavior. All right. एक क्वेश्चन है जी जी। सर, एटीट्यूड बिहेवियर गैप जो होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम रियलाइज करते हैं कि ठीक है बीइंग का मसला हमें नमाज पढ़नी चाहिए, हम इस चीज़ को फैक्ट को एग्री करते हैं, बट वी डू नॉट ऑफर इट। तो वो जो हमारा एटीट्यूड बिहेवियर गैप है उसको हम परसेप्शन से किस तरह से लिंक करें? परसेप्शन के अंदर वेरी गुड पॉइंट। तो जो बात मेरे दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है कि परसेप्शन के देखें कि ये इनपुट आपकी कहाँ से आई हुई है, ये इनपुट क्या आपकी अपनी इंटरनल मोटिवेशन से आई है, ये हर परसेप्शन ये आपकी बिल्ड हुई है थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफ कंडीशनिंग बाय अदर पीपल इन यू। सो अगर वो दिल से आवाज नहीं निकली है तो क्या फायदा नमाज पढ़ने का? एग्जाम्पल। या फिर ये कि फतवे जारी हो गए उस पर यार, तो कुछ पता नहीं होता। बट एट द सेम टाइम उस नमाज का क्या फायदा, और दिस आई वांट टू बी रिकॉर्डेड, उस नमाज का क्या फायदा जो आप मुसल्ले पे खड़े हुए हैं और आपका दिमाग इधर भी जा रहा है तो उधर भी जा रहा है, वो नमाज नहीं हो रही है, वो शैतान का काम हो रहा है। पहले दिमाग को तो स्टिल करना सीखें, उस अनट्रेन्ड माइंड को, दिस इज आल्सो नोन एज द मंकी ब्रेन, उस मंकी ब्रेन को तो जरा फोकस करना सीखें। वो तो हमने कभी बचपन से लेके अब तक हमें सिखाया कि नहीं किसी ने यार, हम तो उसी के शिकार है ना। रात को इसलिए सोते हैं तो हमारी को फिरकी फिर रही है, वो 1 मिलियन माइल्स एन आवर के ऊपर जो है ना हमारा दिमाग जो है ना चल रहा है। एवरेज माइंड थिंक्स अबाउट 14 थॉट्स पर मिनट विदाउट इवन हैविंग एनी कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स। द अबव एवरेज माइंड थिंक्स व्हाट, मोर और लेस थॉट्स पर मिनट, मोर और लेस लेस थॉट्स पर मिनट, Less thoughts. It is not the quantity of thoughts. It is not the quantity of thoughts that determines how intelligent I am. It is the quality and the focus with which I can focus on a thought for a longer period of time and prolong my concentration span on a one thing is the ability known as mindfulness. Mindfulness क्या होती है? The ability to focus on something without being distracted. Example, sorry, if there is a topic in discussion, then staying focused on that topic is a great ability rather than getting distracted with the monkey brain. This is an average mind that gets distracted, and when you have a discussion with somebody, you can very clearly see the confusion areas of that mind. Why? Because they have so much input of junk from outside, news, media, talk shows, zero, seriously zero. गधे हैं, लिटरली गधे हैं यार, भेड़ चाल है ये। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे, हाँ जी देखें ये हुआ फलाना हुआ, इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग। All the talk shows, they don't give a damn about your life. All they care about is the ranking of the show. Do you know this? Then why are you following it? ratings इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ratings. TRP. Ratings. TRP. Everything is rating. मैंने बात की ना कि मैं नया आया तो पाकिस्तान, मैंने कहा यार नया पाकिस्तान की बात सुनिए तो चलो हम भी चलते हैं नया पाकिस्तानी का माइंड सेट तो बनाएं, उस पर तो चाहे चले बात, पॉजिटिविटी लेके आए, नेगेटिविटी बहुत है, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पहुँचा तो एक बदला मिला मुझे, वो NDU का एक एलुमनाई डिनर था कराची के अंदर, जो एक मेरा दोस्त है वो एहसन मशकूर के घर पे, तो वहाँ पे एक कोई मीडिया का कोई प्रेसिडेंट ऑफ चैनल, नाम भी उसको याद नहीं रहा क्या चैनल था, तो उससे मैंने कहा यार कि आपके पास तो इतनी बड़ी पावर है मीडिया की टू इन्फ्लुएंस सम काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द कल्चर, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। कहता है यार ये 2 साल अभी आप नए आए हैं नहीं पाकिस्तान वापस, तो आप 2 साल इधर रह जाएं तो आप भी बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ये सब कुछ जो है ना ये रेटिंग और रैंकिंग की सारी गेम। तो मैंने कहा यार व्हाट अबाउट हायर पर्पस, कि आपके पास एक मीडिया है, आपके पास एक मीडियम है जो कि आप जिसके थ्रू आप लोगों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी कोई सोशल कंट्रीब्यूशन या आपके अंदर से कोई आवाज़ नहीं है यार, कोई हम काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा ठीक भी काम कर लें उसके अंदर,
Ethical and moral values. मॉरल वैल्यूज जो वो कर लें, कोई खिदमत हो जाए, कोई बंदा कोई वर्थ वाइल कोई काम कर ले, कहता है नहीं कि मेरे पास तो ऐसा कोई मिशन नहीं है, मुझे रेटिंग और रैंकिंग चाहिए. If these are the people who are manipulating your mindsets and your psychology and your emotions, अन्नी लगी, एवी टीवी ऑन कर रहे हैं, पता है नहीं कि पिछले क्यों उन्होंने टीवी लगाया हुआ है, हर की चीज पे साइकी चल रही है, मैनिपुलेशन हो रही है. So there's only one way, cut off all input. Just like Badruddin Farasta did. He did not read the newspapers, he did not see the news, and he always saw the positive in everything negative that came to his mind. That's the kind of example that we need to look at in our life. People who are self-made, people who are survivors, people who are successful people. Successful people are not the ones with money and have mental issues and problems and family relations. Successful people are those who have good relationships and who do a contribution towards other people. So उस तरफ लेके जाएं. आप ये वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं, लीडर एज अ कोच, ये कॉन्सेप्ट्स और ये फिलॉसफी अगर आपकी क्लियर नहीं है दिमाग के अंदर, तो की ऐसी कोच करने लोगों ने यार. But Sir, Yeah, there are too many questions on this side. Can we have other people also asking some questions? Yeah, I want equal participation. Sorry to cut you off, but you बात कर लीजिए आप. humble difference of opinion. There is a famous quote that nothing can develop in isolation, nor can decay in isolation. Sir, ये पता क्या? Little knowledge is dangerous. When you listen to these quotes and you start believing them without having the big macro picture, this distorts not only your own ideas, but you're creating confusion that is in your own mind to others around you who are listening. What is the bigger picture? Knowledge is not power. About this quotation, what is the bigger picture in your mind? Is it wrong or right? Having too much inflow of information to your mind, which is an untrained mind, why are you putting in more information which is unresolved? और वो अभी प्रॉपर फाइलिंग कैबिनेट्स में आपने उसका टाइम ही नहीं किया, ना आप मी टाइम गुजारते होंगे, ना उसको एनालाइज करते होंगे, आपकी रोड नंबर रिव्यू ऐसे हो. तो फिर फायदा क्या उस इंफॉर्मेशन का? उस फायदा क्या उस इंफॉर्मेशन का? वो नेगेटिव सीड्स है वो. Alright? Any other question? Filtering the information is another subject. You are not trained to filter it. Accept it. When did you learn to classify information? Do you spend 2 hours in meditation every day to classify the information? But no. Okay, fine. But even if I am not trained on it and I have switched off my television, but even then, my colleagues, they have not turned off their television. My boss has not turned his television. Stop living your life based on other people's lives. You have to create your own But I life. have to live in a society, in a real world. In real world, I have to interact with so many people. Can I say one thing very ruthless? Do you think you could have been higher in your life than where you are today? Sorry, say that. Do you think you could have been higher in your life than where you are today? Higher. You could have achieved much more than what you've achieved now in your life. Yes. There you go. This is a good feeling to have. But this is also an indication that the system is wrong. Alright? So you have to radically change your ideas. It is not easy to let go of the thoughts that have been built up and conditioned for us for ages. It is not easy. जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मजाक कर रहे हैं. हमारे की दिमाग में ये होती है यार मैं इग्नोरेंट कैसे हो सकता हूँ, मैंने सोशल इवनिंग पे जाना है, मैंने लोगों से मिलना है, मैं उनके सामने क्या करूँगा यार, मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में, तुम अखबार भी पढ़ते यार, किसी ने एक कमेंट करते तुम अखबार भी पढ़ते, मैं रात नहीं सोता, देखो यार हाँ आपको अखबार पढ़नी चाहिए यार, क्यों यार इसलिए क्या बुरा लगता है यार पब्लिक में पता ना चीज़ के बारे में, और नहीं पता यार दस दिन क्या जरूरत नहीं पता हर चीज़ के एक्सपर्ट हो यार. अपने लोगों से कंट्रोल करो. Always ask a question. In our military cases, in our cases, And your Air Force. we have to, in Air Force, we have to be very vibrant, very vibrant. We must have a very deep eye on the situation. We have been told like this, and sorry, we are not. That is the locus of control. Actually, we That are is not- right. That is right. That is the locus of control. So from that point of view, perfectly all right. Yeah. But what is the point of seeing talk shows which don't concern that job description? That No, this is not matter of only talk shows. Ah. We are talking about the whole all sort of information. For example, what is happening in Middle East is directly going to affect our life in military. What is going
in Kashmir is directly going to affect on our Whatever opinion you have actions. as an individual in the Air Force or the Army, it does not matter. Because in the end, you will have to follow instructions by somebody who has taken a decision up there. But even if my So what is the point of your knowledge when you're only going to follow instructions which will be different from your own opinion? No, that is not matter of my own opinion. Kyun Farhan? Sir, that is not matter of my own opinion. When there is Again, even in military, although it is said it is like of dictatorship, हाँ, so बे काम and so करना। on. But once my commander takes a decision, we have very open discussions. They allow us to have our difference of opinion. Oh, fair, okay. We differ very clearly. Yeah, but they're not taking the But global. once we reach at a certain conclusion, then we don't differ. Even if that collective decision is against my will and wish, I have to act, and I. That's my point. Yes. That's my point. So But- what I'm saying is, but- what I'm saying is, कि कहानी में, like, staying focused on the job description, that is what is required. So stop distracting yourself from all these things also. So planting, yeah, I'm only planting a seed, and I want you to at least think about it. कि why was the facilitator so adamant and firm on this view? There must be a reason behind it. उसकी क्या रीजन हो सकती हैं, उसकी परसेप्शन ये बातें क्यों है, मैं क्यों ना एक्सप्लोर करूँ उसको और मैं समथिंग डिफरेंट ट्राई करूँ, इसलिए कि यार जो मैं पहले ट्राई करता हूँ वो तो काम नहीं कर रहा भाई. Something like that. So then, and there are other people also here which are important for them to know, like किडी कहानी क्या है. Like I said, किडी कि maybe this is not your need, maybe it is somebody else's. Maybe you've learned how to classify that information or that junk information that is coming to your mind, but maybe somebody else in the audience has not. And maybe makes more sense for them. Like अगर उमर ने कल रात को जाके टीवी जो ऑन करने से पहले टॉक शो देखने से पहले उसने जो है कुछ और पे लगा दिया तो वो ठीक था. Now, Parmir, can I request you please? Let's open the floor for other people also. I want equal participation. I want, but if you are the